یہ حقیقی پی پی ڈی اے ہے. جو چیئرمین سمی خان والی کچھ ساختہ ہے وہ جو ہے اس نے جو ملک کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کیا وہ آپ کو پتہ چل جائے. یہ ٹیکس ہم پہ لاگو نہیں تھا, اس کی کلیریفیکیشن FBR سے آ چکی جی باس بسم اللہ کریں. جی جی باس بسم اللہ کریں, پھر اذان شروع ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک بھر کے تمام الیکٹرانکس میڈیا, پرنٹ میڈیا اور میڈیا سے متعلقہ تمام احباب کو ہم پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے انتہائی شکریہ کے ساتھ السلام علیکم. ہم اس بابت آج یہ پریس کانفرنس منعقد کر رہے ہیں. جی, میں محمد ظہیر احمد پراچا, صدر پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن ضلع لیا اور رکن کور کمیٹی پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن. میں محمد ظہیر احمد پراچا, صدر پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن ضلع لیا اور رکن کور کمیٹی پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن آپ سے مخاطب ہوں. گزشتہ چند ایام میں ملک کے اندر ہمارے کاروبار کے حوالہ سے ایک عجیب سا انریسٹ اور کچھ غلط فہمی چل رہی تھی کہ جب بجٹ تجاویز پیش کی گئیں تو اس کے اندر 0.5% ایک اضافی ایڈوانس انکم ٹیکس جو کہ سابقہ قانون کے مطابق ایک شیڈول اور اس سے منسلک ایک فہرست کے بعد چند آئٹمز کے اوپر لاگو تھا, لیکن موجودہ بجٹ میں وہ 7 یا نیتاً اس کو شیڈول سے ختم کر کے ایز اے ہول لکھا گیا. اس سے ایک زبردست مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی, کیونکہ ہمارا کاروبار جیسا کہ آپ سب لوگ خوب آگاہ ہیں کہ یہ ایک ریگولیٹڈ کاروبار ہے اور اس کے اندر ہمیں ایک ریگولیٹڈ فکس مارجن ملتا ہے جو اس وقت بھی 8 روپے 64 پیسے گراس کی صورت میں ہے, اور اس 8 روپے 64 پیسے میں ہمارے تمام آپریشنل اخراجات شامل ہیں, اور اسی 8 روپے 64 پیسے میں سے 12% کے حساب سے ہمارا انکم ٹیکس بھی ایڈوانس میں کٹ جاتا ہے. تو اس سلسلہ میں ہم نے اور ہماری کور کمیٹی نے ایک پرامن قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر مسئلہ کو حل کی بابت راستہ اختیار کیا, اور اللہ کے حکم اور اللہ کے فضل سے شکر الحمدللہ ہماری بات کی سنوائی ہوئی, اور وہ جو ایک غلط فہمی تھی کلیریفیکیشن کی بات وہ مختلف مدارس سے ہوتی ہوئی FBR سے کلیریفائی کر کے اس کو واپس اس کو ختم کر دیا گیا. لیکن ہم کور کمیٹی کے ارکان اس سے قبل مختلف مسائل کے حوالے سے محترم جناب چیئرمین اوگرا, ڈائریکٹر جنرل ایکسپلوسیوز اور محترم جناب چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی صاحب سے پچھلے ہفتے اشرے میں اپنے دیگر مسائل کی بابت بھی ملاقات کر چکے تھے. ان میں ملک کے اندر سمگلنگ سے پیدا شدہ صورتحال اور بے شمار مشروم گروتھ آف ڈبہ اسٹیشنز جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار بہت بری طرح
हिट हो चुका है। और सबसे बढ़कर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की इजारादारी, जो उन्होंने कानून को हाथ में लेते हुए गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों से मचा रखी है, कि एक वो मायदा जिस मायदा के तहत हम इनके साथ कारोबार में बनते हैं, उसको पहले कहा जाता था डीलरशिप एग्रीमेंट। अब 90 की दहाई के बाद जब शेल का अरूज आया, तो उस डीलरशिप मायदों का नाम इन्होंने फ्रेंचाइज एग्रीमेंट का दे दिया, और लॉ ऑफ द लैंड के अगेंस्ट, जो लॉ ऑफ द लैंड कहता है कि बतौर डीलर हमने काम करना है इस मुल्क के अंदर विद इन दी सर्कमफ्रेंस ऑफ डीलर मार्जिन, और ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने काम करना है विद इन दी सर्कमफ्रेंस ऑफ डीलर मार्जिन। तो उस वायदा में इन्होंने फ्रेंचाइज फीस हमारी मासूमियत समझ लें, हमारी लाइलमी समझ लें, कारोबार की शुरुआत से पहले वो वायदा किया, और उस वायदा जिसको कानून की निगाह में एलिनेशो कहते हैं, उस वायदा की आड़ में इन्होंने हमसे वो फ्रेंचाइज फीस की कटौती शुरू की, जो हनूज उन्होंने जारी रखी हुई है। और रेट ऑफ इन्फ्लेशन के साथ जबकि गिरानी बढ़ती है, हमारी आमदन बजाय बढ़ने के वो कमी की जनक काम कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने मुतल्लिका अकाबरीन को अर्ज की कि चूंकि वो एलिनेशो है, अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड है, तो इसके ऊपर नजरसानी कराई जाए। और एक और उन्होंने उद्यम मचाया है कि मुख्तलिफ ढीले बानों से मोबाइल के दौरे ले, और उसको वो रेगुलेटेड बिजनेस पेट्रोल और डीजल के साथ टाई अप करते हैं कि ये भी उठाएं, और ये डब्बा स्टेशन हैं, इस हवाले से कि उन जो हमारे कारोबार को हिट कर रहे हैं, इनका खात्मा हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। तमाम प्रेस के मशहूर है जी कि इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप सब लोग तशरीफ लाए, और हमेशा की तरह हमारे जो मसाइल हैं उनको उजागर करने में आपने अपना किरदार, मुस्बत किरदार अदा किया। तो बुनियादी तौर पे आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ चीज़ों का अहवाल तो अपना राजा साहब ने आपको बता दिया, जो बेसिक इशू था। इसमें थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि शायद हमें एग्जम्पशन मिल गई है। ख्वाजा इंजीनियर ख्वाजा आतिफ अहमद, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, तो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन चल रही है। वो उसकी मैं क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ कि हमें एग्जम्पशन नहीं मिली। डबल टैक्सेशन इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हम ऑलरेडी टैक्स रजिस्टर्ड है और टैक्स पे करते हैं। हमारे पे जो इन्होंने 0.5% टर्न ओवर टैक्स लगाया था, वो अगर क्लरिकल मिस्टेक थी या नीतन लगाया गया, जो भी किया उन्होंने, बहरहाल उसको उन्होंने वापस के लिए गलती है और उन्होंने विड्रॉ कर लिया। और इसके लिए हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और चेयरमैन FBI और उसके साथ साथ PSO के अकाबरीन के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस जायज़ चीज़ में बड़ा सपोर्टिव और पॉजिटिव रोल प्ले किया, और इसको ख़त्म करने में इन्होंने अपना किरदार अदा किया, और हम उनके तहे दिल से मशहूर हैं। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जो भी हुकूमत के साथ मिल के जो डीलर्स के जायज़ मुतालबात हैं, हम कोशिश करेंगे कि टेबल के ऊपर बैठ कर, कुछ का राजा साहब ने जिक्र किया और बाकी कुछ आप नुमान साहब आपको रोशनी डाल देंगे। तो थैंक यू वेरी मच ऑन माई पार्ट। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से
पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं। आपसे गुजारिश है कि ऐसे जो खुद साख्ता चेयरमैन कहलाते हैं एसोसिएशन के, बराए मेहरबानी उनकी कोई खबर पे नाकाम किया जाए, क्योंकि ये जो एक गलत मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इन्होंने मुल्क के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की और पेट्रोल पंप बंद करवाए। अवाम की मुश्किलात को हमने सामने रखते हुए हमने उनसे लातलकी का इजहार किया। ये टैक्स हम पे लागू नहीं था, विदहोल्डिंग टैक्स, हम ऑलरेडी 12% टैक्स दे रहे हैं। इसके ऊपर FBR ने भी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने, तमाम इदारों ने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि ये टैक्स इन पर लागू नहीं होता। जब ये लागू नहीं होता तो ये जो दूसरा ग्रुप बना हुआ है, ये क्यों मीडिया पे जो है वो लोगों को हाइप क्रिएट करके और मुल्की हालात को ख़राब करना चाहते हैं। तो हम जनाब सेक्रेटरी पेट्रोलियम, दैन चेयरमैन ओगरा, तमाम सेक्रेटरी पेट्रोलियम, चेयरमैन ओगरा, जितने भी लोग इस हमारे मसाइल के हल के लिए जिन्होंने काम किया, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं आइंदा भी जो मसाइल होंगे वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल होंगे। शुक्रिया। नहीं, वैसे डॉक्टर साहब ये बताइएगा, इतना बड़ा बोल्ड स्टेप लिया गया, अनाउंसमेंट की गई, तो पूरे मुल्क में